Hello everyone, welcome back to the channel. So you all are aware that PFRDA notification is out and you might be having various doubts and questions in your mind like previous year की कट ऑफ क्या थी जिसके बेसिस में हम अपना सेफ स्कोर डिसाइड करेंगे इस साल का। आप क्या स्कोर टारगेट करना चाहते हैं या क्या करना चाहिए आपको। आपके दिमाग में ये भी डाउट हो सकता है कि क्या प्रीवियस ईयर की कट ऑफ्स रिलेवेंट है भी, क्योंकि ये एग्ज़ाम हुआ था 2022 में लास्ट टाइम और उसके पहले हुआ था 2021 में। क्या इन दोनों सालों की कट ऑफ जो है वो रिलेवेंट है भी दिस ईयर और नॉट। एंड वन मोर थिंग, दी वेटेज क्राइटेरिया, इज इट देयर इन दी component or not, because it is not written in the official syllabus. तो सेबी की तरह क्या वेटेज भी है? तो ये सारी बातें आपको इस वीडियो में पता चलेंगी। आगे बढ़ने से पहले लेट मी टेल you something about this free ebook, or you can call it guidebook, because this guidebook is going to give you complete decoded syllabus. See what happens, whatever notification you have seen and whatever syllabus you have seen there, it is not the complete syllabus. Why I'm saying so? Because there are some implied topics, and from the analysis of PYQs you can say that there are some topics which are not explicitly mentioned in the official syllabus. This is your decoded syllabus. It contains all the explicit topic and as well as the implied one. So it is going to give you the complete picture of all the topics or all the chapters you need to cover for this examination. Okay? And it is very important. And this is, we are providing you for free of cost. There is no charge of it. And how to download this? In the description box, you are going to get a link of this guidebook. Just click on that and download this free book, right? Okay, let's move ahead with the cutoff analysis. But before that, let me briefly talk about the subjects that you are going to see in your examination. So in the phase 1, you are going to see English language, quants, test of reasoning, and the general awareness. You all are aware of that, right? In the paper 2, for phase 1 and phase 2, subjects are common, and subjects are commerce, accountancy, management, finance, costing, companies act, economics, and your pension sector. So around 7 subjects you are going to see in your paper 2 of phase 1 and as well as for your phase 2. But here is a catch. Here it is nowhere written that there is a weightage, just like we have seen in the SEBI. In the SEBI हमारे पास weightage होता था, 1/3 weightage होता था English का, and 2/3 weightage was there for the subjects domain specific. But here in the notification there is no mention of weightage. I'll talk about this. Don't worry about that in the upcoming slides. This doubt will also get cleared, right? Okay. First of all, let's talk about the cutoffs for last year recruitment, last recruitment cycle, that is recruitment cycle of 2022. सबसे पहले हम बात करेंगे फेस 1 की कट ऑफ की, सो दैट आपको आइडिया लगे कि फेस 1 में आपको कितनी प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, अब जब हम फेस 1 की बात करेंगे जनरल कैटेगरी के लिए, अभी हम जनरल कैटेगरी की ही बात करेंगे, ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ गई है पेपर 1 में, दैट इज़ वेरी लेस, 22 आउट ऑफ 100 पेपर 1 में। सेबी के ही पैटर्न का है, बट सेबी में फिक्स कट ऑफ थी 30, यहाँ पे कोई फिक्स कट ऑफ नहीं है। तो ये एक मेजर चेंज है सेबी के कंपैरिजन में। तो आप लोग ने सेबी की तैयारी की थी तो आप लोग को ये फॉर्म भरना चाहिए, क्योंकि सिलेबस बिल्कुल सेम है एक्सेप्ट फॉर फ्यू एक्स्ट्रा कंपोनेंट लाइक पेंशन सेक्टर। तो पेपर 1 की कट ऑफ गई है 22, पेपर 2 की कट ऑफ है 16.50। पेपर 2 मतलब डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स, अकाउंटेंसी, फाइनेंस, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, कॉस्टिंग एंड ऑल, राइट। एग्रीगेट कट ऑफ आउट ऑफ 200, कैन सी इट इज 39.62। द कट ऑफ इज वेरी लेस, राइट, फॉर द पेपर, फॉर द फेस 1, and this is your aggregate cutoff. Now see, obviously cutoff is going to increase this time because competition is increasing, plus just now in the previous year we have seen SEBI recruitment, so people will, or the aspirants who are preparing for SEBI, they are going to definitely fill this form as well. So competition is going to increase, and we are going to talk about what should be the safe score for phase 1 in upcoming slides. But for now, let's move to the phase 2 cutoff. You have got the idea of phase 1 cutoff. कितनी कट ऑफ थी? अराउंड 40 कट ऑफ थी आउट ऑफ 200। पेपर 1 की 22 और पेपर 2 की 16.50। अगर मैं फेज 2 की बात करूं,
पेपर 1 की कट ऑफ आउट ऑफ 100 कितनी है 51, और जनरली इतनी ही कट ऑफ जाएगी इस बार भी। इंग्लिश के पेपर में कट ऑफ लगभग इतनी ही जाती है 40 to 50, ये कम हो सकती है या इतनी रह सकती है, थोड़ी बहुत बढ़ सकती है, ठीक है। हाँ, जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है उसमें कट ऑफ आप देख पा रहे हैं, आउट ऑफ 100 कट ऑफ इज ओनली 33.75। वाई इट वॉज सो लो? बिकॉज ऑफ द कॉम्पिटिशन। बहुत कम लोगों ने ये फॉर्म भरा था, क्योंकि 2022 में सेबी का फॉर्म भी आया था, जस्ट आया था, और उसके तुरंत बाद ही आ गया था, और इसमें बहुत कम सीट्स थी लास्ट टाइम। इस बार सीट्स बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बट बहुत कम भी नहीं है, और लोगों ने जो प्रिपेयर किया था सेबी को का लास्ट ईयर, अब उसको रिवाइज करने का टाइम भी आ गया है, उतना ज़्यादा टायर्डनेस नहीं है माइंड में, तो इस बार लोग फॉर्म भरेंगे इसके, ये कट ऑफ तो बढ़ने वाली है, ठीक है। और जो वेटेड स्कोर है कितना है 63.67 आउट ऑफ 100 है, तो ओवरऑल कट ऑफ तो सही गई है, इतनी जानी चाहिए थी। अब आप एक चीज़ समझो, यहाँ पे बोल रहा है फेज 2 का वेटेड कट ऑफ, लेकिन नोटिफिकेशन में वेटेज की बात ही नहीं हुई है, ना ही इस बार की नोटिफिकेशन में, ना ही पिछली बार की नोटिफिकेशन है। इसका मतलब है वेटेज तो है, बट ये बात कट ऑफ की नोटिस में सामने आई थी कि पेपर 1 का जो वेटेज है वो 1/3 है, जो पेपर 2 का वेटेज है वो 2/3 है। आपको ध्यान रखना है, सेबी के तरह ही, जस्ट लाइक द सेबी इन द फेज 2 एग्जामिनेशन, इंग्लिश कंपोनेंट is having 1/3 weightage and the paper 2 component is having the weightage of 2/3, मतलब 33.33%, और इसका 66.66% काउंट करके आपका ओवरऑल मार्क्स की रैंकिंग बनेगी। 63.67 लास्ट ईयर फेज 2 की कट ऑफ गई थी। अब बात करते हैं फाइनल कट ऑफ की। फाइनल कट ऑफ फॉर द अनरिजर्व कैटेगरी इज 71.22 आउट ऑफ 100। अगेन जो भी आपने फेज 2 में स्कोर किया था दैट विल बी वेटेड डाउन टू 85%, एंड द इंटरव्यू marks are also there and it accounts for 15% marks, and overall out of 100 the cutoff was 71.22 out of 100. This was your final cutoff, ठीक है। आपको कट ऑफ का आइडिया लग गया, और सेम पैटर्न है जो पिछले साल का पैटर्न था, मतलब 2022 का जो पैटर्न था वही इस साल का भी पैटर्न है, कुछ चेंज नहीं हुआ है। सो येस, इट इज रिलेवेंट फॉर यू, दिस कट ऑफ इज रिलेवेंट फॉर यू। लास्ट ईयर 100 में से 71.22 गई थी फाइनल कट ऑफ, और फेज 2 की कितनी गई थी 63.67। फेज 1 का डिस्कस कर चुके हैं कि आपके लिए सेफ स्कोर क्या होना चाहिए। फेज 1 के लिए बात करते हैं पहले। तो जो लास्ट रिक्रूटमेंट था उसमें आउट ऑफ 200 कट ऑफ गई थी अराउंड 40। इस बार ये कट ऑफ बढ़ने वाली है। वाई? बिकॉज कॉम्पिटिशन इज गोइंग टू इंक्रीज डेफिनेटली। लास्ट टाइम यही गलती हुई थी कि बहुत कम लोगों ने फॉर्म भरा था, इसलिए कट ऑफ इतनी कम गई थी। इस बार ये गलती नहीं करने वाले एस्पिरेंट्स, उनको पता है कि ये अपॉर्चुनिटी है तो वो फॉर्म भरेंगे। क्या होता है, जितना लोगों को लगता है जितनी वैकेंसी कम है उतना फॉर्म कम लोग भरते हैं, क्यों? उनको लगता है कि कंपटीशन ज़्यादा है, बट आप देख सकते हो कंपटीशन ज़्यादा नहीं था। आउट ऑफ 200 40 गई थी कट ऑफ, ठीक है। इस बार हाँ कट ऑफ बढ़ेगी 45 to 50। आप ट्रेंड एनालिसिस के हिसाब से देख सकते हो कि थोड़ी कट ऑफ बढ़ने वाली है। अराउंड 45 to 50 मार्क्स कैन बी योर सेफ स्कोर इन दी फेज 1। फेज 1 क्वालिफाइंग नेचर का है वैसे भी, तो इसकी कट ऑफ बहुत ऊपर जाएगी भी नहीं, ठीक, क्योंकि ये मार्क्स जुड़ते नहीं है फाइनल मेरिट लिस्ट में, ठीक है। तो अराउंड 45 to 50 मार्क्स कैन बी योर सेफ स्कोर फॉर 2025 एग्जाम फॉर द फेज 1 ओनली। बट इफ आई टॉक अबाउट फेज 2, इसका स्कोर अच्छा था लास्ट रिक्रूटमेंट साइकिल में भी। सो आउट ऑफ 100 कट ऑफ वॉज 63.67। अगेन कट ऑफ इज गोइंग टू इंक्रीज राइट नाउ दिस ईयर। सो योर सेफ स्कोर, योर टारगेट स्कोर शुड बी 70 to 75 marks, as we have seen in the SEBI as well. This should be your target score. Around 70 to 75 marks will be your safe zone. Obviously, the more you are going to target, the more you are going to score, the better it will be. But minimum marks, I am telling you about the minimum marks. Minimum you should target 70 to 75 marks. Got it? Now, if I talk about final cutoff, then out of 100, you should be targeting at least 72 to 78 marks. At least. The more you are going to score, the better it is. But at least you should be targeting 72 to 78 marks. ठीक है?
क्लियर? तो ये आपका सेफ स्कोर रहेगा 2025 के लिए, अगर आपको फाइनल सिलेक्शन चाहिए तो। ठीक है, अब आज की हमने जो वीडियो में डिस्कशन किया, पूरा सेफ स्कोर का डिस्कशन कर लिया, वेटेज का भी मैंने आपको बता दिया क्राइटेरिया क्या होगा इस बार भी लास्ट ईयर की तरह, भले नोटिफिकेशन में नहीं लिखा है फिर भी हमने डिस्कस कर लिया। और अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे एडोटैप आपकी हेल्प कर सकता है इस PFRDA के एग्जाम में। लेट मी जस्ट take you to the website of Edotap. In the Google, just type edotap.in. You will find this page. Go to the courses and go to the PFRDA grade A courses, and you will find this page. Scroll down, right, and you will find various courses offered by the Edotap, and this course include your silver course and the gold course for the PFRDA. What is the difference between these two courses? See, in the PFRDA course, you are going to get everything right from the phase 1, phase 2 and the interview stage, right? That means you are also getting the concept classes or videos or notes of QRE, that is quant, reasoning and English. But in the silver course you are not getting the videos and notes of QRE, that is quant, reasoning and English, because there are so many aspirants who are comfortable with these three subjects. They only want to study the phase 2 subjects, that is component subjects. So for them silver course is good. ठीक है, तो अगर आपको क्यूआरई नहीं पढ़ना है तो आप सिल्वर कोर्स पे जाइए। इस यहाँ आपको क्यूआरई छोड़ के बाकी सारे कंपोनेंट्स के कॉन्सेप्ट क्लासेस मिलेंगी, कॉन्सेप्ट नोट्स मिलेंगे, समरी शीट्स मिलेंगी, मॉक टेस्ट मिलेंगे और करंट अफेयर मिलेंगे। ठीक है, गोल्ड कोर्स में सब कुछ मिलेगा, क्यूआरई भी मिलेगा, सारी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, डन। तो इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं। कोर्स बहुत ही अफोर्डेबल है, फ्लैट 70% ऑफ चल रहा है, कोड लगा के आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो बस अब आज के लिए इतना ही। कोई भी डाउट है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, आपकी डाउट मैं क्लियर कर दूंगा कमेंट सेक्शन। ठीक है, चलो।